And today we want to think of the reason why so many people feel insecure and the problems that come from that and the solution for that. इस अध्ययन में हम उन कारणों पर विचार करना चाहते हैं कि इतने सारे लोग असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं, असुरक्षा से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उनके समाधान क्या है। When Jesus was leaving the world on the night before he was crucified, he told his disciples in John 14 and verse 18, I will not leave you as orphans. प्रभु यीशु जब इस संसार को छोड़ रहे थे, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अनाथ के रूप में नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 उसका 18 वचन। I will come to you. That is in the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन में हुआ। What is an orphan? An orphan is one who has no father or mother. अनाथ कौन है? अनाथ वह है जिसके माता पिता न हो। And there's a lot of difference between a child who has grown up in a home experiencing the love of a father and mother and a child who has had no father and mother, or that means the father and mother died when the child was small, and so the child had to be brought up by stepmother or stepfather or uncle or auntie or grandparents, or sometimes in an orphanage. एक बच्चा जो पिता और माँ के प्रेम का अनुभव करते हुए एक घर में बड़ा हुआ है, और एक बच्चा जिसके पास कोई पिता और माँ नहीं है, इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। इसका मतलब है कि जब बच्चा छोटा था तब माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए बच्चे को सौतेली माँ या सौतेले पिता या चाचा या चाची या दादा दादी या कभी कभी अनाथालय में पाला गया हो। Orphans tend to be insecure because they have not experienced love in their childhood. अनाथ बच्चे असुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। The love that only a father and mother could give. No uncle or auntie or grandmother or orphanage can ever give it. वह प्रेम जो केवल एक पिता और माँ ही दे सकते हैं, कोई चाचा या चाची या दादा या कोई अनाथालय कभी नहीं दे सकता। And when there is this type of insecurity because of a lack of love, orphans tend to be very defensive. और जब प्रेम की कमी के कारण इस प्रकार की असुरक्षा होती है तो अनाथ बच्चे बहुत रक्षात्मक हो जाते हैं। They tend to feel that people are against them, they must defend themselves, and introverted, depressed, discouraged, jealous of others who have more than them. उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ है और उन्हें अपना बचाव करना होगा। वे अंतमुखी, उदास, निराश और दूसरों से ईर्ष्यालु हो जाते हैं जिनके पास उनसे अधिक है। They become very possessive in friendships because of insecurity. They want somebody to love only them and nobody else. असुरक्षा के कारण वे दोस्ती में बहुत अधिक अधिकारवादी हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि कोई सिर्फ उनसे ही प्रेम करे और किसी से नहीं। And we shouldn't judge orphans who are like this. They can be like that even when they are 40 or 50 years old. हमें ऐसे अनाथों का न्याय नहीं करना चाहिए जो ऐसे हैं। वे 40 या 50 वर्ष के होने पर भी वैसे ही रह सकते हैं। Because way back in childhood, they never experienced the love of a father or mother. क्योंकि बचपन में उन्हें कभी भी पिता या माँ के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ था। Those of us who have parents sometimes don't appreciate the value of having parents. That's unfortunate. हम में से जिनके माता पिता हैं, वे कभी कभी उनके होने के महत्व को नहीं समझते हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। Some of you, children, you probably don't appreciate the value of your parents sufficiently. You need to thank God for your father and mother, because there are many children in the world who do not have a father and mother. आप में से कुछ बच्चे संभवतः अपने माता पिता के मूल्य की पर्याप्त सराहना नहीं करते हैं। आपको अपने पिता और माता के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। Now I want to apply this spiritually. What did Jesus mean when he said, I will not leave you orphans? मैं इसे आध्यात्मिक रूप से लागू करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा? Spiritually speaking,
we can say the world is full of orphans. आध्यात्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि संसार अनाथों से भरा पड़ा है, Because they don't have a father. They don't have God as a father. They don't know God as a father or mother. क्योंकि उनका कोई पिता नहीं है, उनके पास पिता के रूप में परमेश्वर नहीं है, वे परमेश्वर को पिता या माता के रूप में नहीं जानते। And so, all the characteristics that you find in ordinary physical orphans, you find in these spiritual orphans. तो वे सभी विशेषताएं जो आप सामान्य भौतिक अनाथों में पाते हैं, आप इन आध्यात्मिक अनाथों में पाते हैं। The world is full of people who are insecure, who feel that others are against them, so they fight and they defend themselves. They're very possessive. दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो असुरक्षित है, जिन्हें लगता है कि दूसरे उनके खिलाफ है, इसलिए वे लड़ते हैं, वे अपना बचाव करते हैं, वे बहुत अधिकारवादी होते हैं। It's like that because they're spiritually orphans. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से अनाथ हैं। They love money because they're insecure. उन्हें पैसे से प्रेम है क्योंकि वे असुरक्षित है। They have no heavenly father. They're anxious. They're worried. उनका कोई स्वर्गीय पिता नहीं है, वे चिंतित है, वे परेशान हैं। Jesus sought so much during his earthly ministry to impress upon his disciples the fact that God was a loving father. प्रभु यीशु ने अपने धरती पे की सेवकाई के दौरान अपने शिष्यों को यह तथ्य समझाने की बहुत कोशिश की कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। He taught them to pray, Our Father. No person in the Old Testament could ever pray like that. But he said, when you pray, say Our Father. And after his resurrection, he said, My Father is your Father. उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, हमारे पिता। पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति कभी भी इस तरह प्रार्थना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हमारे पिता, और उनके पुनरुत्थान के बाद उन्होंने कहा मेरे पिता तुम्हारे पिता है। There's a beautiful verse in John 1 verse 18 which says, No one has seen God at any time, but Jesus came and explained him to us. यूहन्ना 1:18 में एक सुंदर वचन है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु ने आकर इसे हमें समझाया। In other words, Jesus by his life and his teaching has explained to us what God is like. दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने उनके जीवन और उनकी शिक्षा से हमें समझाया है कि परमेश्वर कैसे हैं। You know, the world is full of people who have never seen God. None of us have seen God. That's what it says in that verse. And when we have not seen God, it's like a man who's never seen an elephant. आप जानते हैं दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है। हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। उस वचन में यही कहा गया है, जब हमने परमेश्वर को नहीं देखा तो यह उस आदमी के समान है जिसने कभी हाथी नहीं देखा हो। You know, if you've never seen an elephant or never seen a photograph of an elephant, supposing you were to go to some country, say some Western country where there's some child who has maybe seen pictures of lions and tigers but never seen a picture of an elephant, and never seen an elephant, never seen a picture of one, and supposing you ask that child to draw a picture of an elephant. जब आपने हाथी को नहीं देखा हो और हाथी की तस्वीर भी नहीं देखी है, और मान लीजिए कि आपको किसी देश में जाना है, जैसे कि कोई पश्चिमी देश जहां कोई बच्चा है जिसने शायद शेरों और बाघों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन उसने कभी हाथी या उनकी तस्वीर नहीं देखी है, यदि आप उस बच्चे से हाथी का चित्र बनाने को कहें, This is what you think an elephant will look like. Do you think any child in the world will ever think of drawing a long nose, which we call a trunk? No. तो आपके अनुसार वह हाथी कैसा दिखेगा? क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा कभी लंबी नाक, जिसे हम सूंड कहते हैं, बनाने के बारे में सोचेगा? नहीं, Because there's no other animal that has it. क्योंकि ऐसा कोई अन्य जानवर नहीं है जिसके पास यह हो। They will draw something that looks like a lion or a dog or like most animals with 4 legs, and वे कुछ ऐसा चित्र बनाएंगे जो शेर या कुत्ते जैसा दिखता हो या 4 पैरों वाले अधिकांश जानवरों जैसा दिखता हो। nobody will be able to draw an elephant who has not seen one or a picture of one. लेकिन कोई भी हाथी का चित्र नहीं बना पाएगा अगर उसने हाथी या उसका चित्र नहीं देखा हो। Because how can you imagine? And if it's some created animal like this we cannot draw a correct picture of, can you draw a correct picture of God? No. आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा किसी सृजित जानवर के साथ है जिसको बिना देखे हम सही तस्वीर नहीं बना सकते, तो क्या आपको ईश्वर की सही तस्वीर बना सकते हैं? नहीं। Your picture will definitely be wrong.
And so we have so many people who have given their own opinions about God, and what is the result? Today we have so many religions, each with their own ideas about what God is like. आपकी तस्वीर जरूर गलत होगी। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के बारे में अपनी अपनी राय दी है, और परिणाम क्या है? आज हमारे पास बहुत सारे धर्म हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने विचार है कि परमेश्वर कैसा है। It's like 200 people who have never seen an elephant or a picture of one trying to draw an elephant. Who is right? यह उन 200 लोगों की तरह है जिन्होंने कभी हाथी या उसका चित्र नहीं देखा है और हाथी का चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सही है? Every one of them is wrong. But the man who has seen an elephant, he'll be able to draw a correct one. And so when Jesus came from heaven, he was the only person who could tell us what God is like. उनमें से हर एक गलत है, लेकिन जिस आदमी ने हाथी देखा हो वह सही चित्र बना सकेगा। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से आए तो वो एकमात्र व्यक्ति थे जो हमें बता सकते थे कि परमेश्वर कैसे हैं। See, most people's idea of God is of one who is a very strict person, like a policeman who's out to catch you for some small mistake you did. परमेश्वर के बारे में अधिकांश लोगों की धारणा एक बहुत ही सख्त व्यक्ति की है, जैसे कि एक पुलिसकर्मी जो आपकी किसी छोटी सी गलती के लिए आपको पकड़ने के लिए तैयार है। You know, like these traffic police wait around blind corners to see if you have cut the circle or made some traffic, violated some traffic rule. They think God is like एक that. ट्रैफिक पुलिस की तरह जो अंधे मोड़ पर यह देखने के लिए इंतजार करता है कि आपने सर्कल काटा है या कोई ट्रैफिक उल्लंघन किया है या कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही है, Just waiting, hiding in the corner and to pounce on you as soon as you make some mistake. So most people live in fear, in a wrong type of fear of God. They're afraid God will punish them or harm बस them. इंतजार कर रहे हैं और कोने पर छिपे हुए हैं, जैसे ही आप कोई गलती करे आप पर झपट पड़ेंगे। इसलिए अधिकांश लोग परमेश्वर के प्रति गलत प्रकार के भय में रहते हैं। उन्हें डर है कि परमेश्वर उन्हें सजा देंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। And so every religion, there are preachers and teachers and priests who capitalize on this fear that people have. And they say, now you got to please this God in some way or the other, otherwise he'll punish हर you. धर्म में ऐसे उपदेशक, शिक्षक और पुजारी होते हैं जो लोगों के इस डर का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें किसी न किसी तरह इस परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा, नहीं तो वह तुम्हें दंड देंगे। And almost every religion, including the Christian religion, priests and preachers say the way to please God is by giving him money. मसीह धर्म सहित लगभग हर धर्म में पुजारी और उपदेशक कहते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका उन्हें धन देना है। And so people give money. They go on long pilgrimages here and there and give hundreds of thousands of rupees. And a lot of this money goes into the pockets of these priests and preachers and pastors and all that. तो लोग पैसे दे देते हैं, यहाँ वहाँ लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, लाखों रुपए देते हैं। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन पुजारियों और उपदेशकों और पासबानों की जेब में चला जाता है। It's all capitalizing on the weakness or of orphan-like people. यह सब अनाथ जैसे लोगों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए है। And knowing that they have some type of guilt feeling and fear and making them give their money. It's a great deception. यह जानते हुए कि उनमें किसी प्रकार की अपराध भावना या डर है तो वे उन्हें अपना पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं। यह बहुत बड़ा धोखा है। Jesus came to remove this concept of God from people altogether. प्रभु यीशु एक साथ सभी लोगों से परमेश्वर की इस अवधारणा को दूर करने के लिए आए। He said God's a loving father. उन्होंने कहा कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। God's interested in you, not in your money. परमेश्वर को आप में रुचि है, न कि आपके पैसों में। He's interested in helping you. Which father is always trying to get money out of his small children? A father is always trying to help his children, feed them, clothe them, educate them, spend so much money on them and get nothing in return. वह आपकी मदद करने में रुचि रखते हैं। कौन सा पिता अपने छोटे बच्चों से हमेशा पैसे ऐंठने की कोशिश में लगा रहता है? एक पिता हमेशा अपने बच्चों की मदद करने की कोशिश करता रहता है, उन्हें खिलाने, उन्हें कपड़े पहनाने, उन्हें शिक्षित करने में उन पर इतना पैसा खर्च करता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। Jesus revealed God as a father. And when you feel that God is like a managing director living up there in the top floor of some factory whom you never see. प्रभु यीशु ने परमेश्वर को एक पिता के रूप में प्रकट किया
जब आपको लगता है कि परमेश्वर एक प्रबंधक निदेशक की तरह है जो किसी कारखाने की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है जिसे आप कभी नहीं देख सकते, well, you got a wrong concept of God, and you're an orphan. And the result is, there's a lot of insecurity, anxiety, fear, tension in your life, which you need not have. तो यही कारण है कि आपने परमेश्वर की गलत अवधारणा समझ ली है और आप अनाथ की तरह हो। इसका परिणाम यह होता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक असुरक्षा, चिंता, भय, तनाव आ जाता है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। Jesus said, look at the birds of the air. Who feeds them? प्रभु यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, उन्हें कौन खिलाता है? They don't have a barn, they don't have a storehouse. And yet how many dead birds do you see on the road? उनके पास खलियान नहीं है, उनके पास भंडार गृह नहीं है, फिर भी आप सड़क पर भूख के कारण कितने मरे हुए पक्षी देखते You हैं। hardly can find one dead bird on the road. It's very rarely that you find a dead bird on the road. How is that? आपको सड़क पर शायद ही कोई मरा हुआ पक्षी मिले। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सड़क पर कोई मरा हुआ पक्षी मिले। वह कैसा है? कैसे How है? is it they don't all starve to death? ऐसा कैसे है कि वे सभी भूख से नहीं मरते? Are there lots of people throwing seed for the birds every day? क्या बहुत से लोग प्रतिदिन पक्षियों के लिए बीज फेंकते हैं? How many times have you done it? आपने ऐसा कितनी बार किया है? No, they find it. नहीं, वह इसे ढूंढते हैं। Somehow or the other, your heavenly Father feeds them. And they are not worried. And Jesus said, don't you think you are of more value than many sparrows? The sparrows is among the cheapest of all the birds. किसी न किसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो? गौरैया सभी पक्षियों में सबसे सस्ती है। There's a little poem of two little birds that was sitting on a tree and talking to one another. And one bird was asking the other bird, why do you think these human beings are so anxious and worried? They always seem to be so tense in their life. And the other bird said, I think the reason is they don't have a heavenly Father like we have. यह दो छोटे पक्षियों के बारे में एक छोटी सी कविता है जो एक पेड़ पर बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी से पूछ रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि ये इंसान हर समय इतने चिंतित और व्याकुल क्यों रहते हैं? वे अपने जीवन में हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं। दूसरे पक्षी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उनके पास हमारे जैसा कोई स्वर्गीय पिता नहीं है। That's the reason. We are okay because our Heavenly Father provides us something. What do you think, my friend, when you hear those two birds talking? Isn't that a shame when Christians are anxious and worried? You know, when we are anxious and worried, it makes us irritable. It makes us tense. यही कारण है हम ठीक है क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप उन दो पक्षियों को बात करते हुए सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह शर्म की बात नहीं है जब मसीह चिंतित और व्याकुल है? आप जानते हैं, जब हम चिंतित और व्याकुल होते हैं तो यह हमें चिड़चिड़ा बना देता है, यह हमें तनावग्रस्त बना देता है। And it makes us hit back at people who we think we suspect they are hitting at us. यह हमें उन लोगों पर पलटवार करने के लिए प्रेरित करता है जिन पर हमें संदेह होता है कि वे हम पर हमला कर रहे हैं। The person who is secure in God is never disturbed by whatever people say. जो व्यक्ति परमेश्वर में सुरक्षित है वह उन लोगों से जो कुछ भी कहते हैं उससे कभी परेशान नहीं होता। Supposing you're walking down the road and a dog keeps on barking from, say, inside a locked gate, or even barking from the other side of the road. What are you going to do? मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और एक कुत्ता बंद गेट के अंदर से भौंक रहा है या सड़क की दूसरी ओर से भी भौंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? Are you going to argue with that dog? Are you going to go fighting with the dog and say, why do you bark क्या at आप me? उस कुत्ते से बहस करने जाएंगे? क्या आप उस कुत्ते से लड़ने जाएंगे और पूछेंगे कि तू मुझ पर क्यों भौंक रहा है? It is as foolish when you go and start arguing with somebody who's accusing you or calling you names or telling false stories about you. ये उतना ही मूर्खतापूर्ण है जब आप जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करना शुरू कर देते हैं जो आप पर आरोप लगा रहा है, आपका गलत नाम ले रहा है या आपके बारे में झूठी कहानियां बता रहा है। What should you do? What do you do when you see a barking dog on the other side of the road? Just leave him alone. आपको क्या करना चाहिए? जब आप सड़क के दूसरी ओर भौंकते कुत्ते को देखते हैं तो आप क्या करते हैं? बस उसे अकेला छोड़ देते हैं। But if you're insecure
and you're like an orphan, you won't be able to do that. लेकिन अगर आप असुरक्षित हैं और आप अनाथ की तरह हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. You'll be tense, you'll be worried, and you will just go and fight with that dog. And that's how many people fight and argue with people who are calling them bad names. Somebody writes a bad letter to them, they write one back to them. आप तनावग्रस्त होंगे, आप चिंतित होंगे और आप बस जाकर उस कुत्ते से लड़ेंगे. इसी तरह बहुत से लोग उन लोगों से लड़ते हैं और बहस करते हैं जो उन्हें बुरे नाम से बुलाते हैं. कोई उन्हें एक बुरा पत्र लिखता है, वे उसे वापस एक बुरा पत्र लिखते हैं. ये सब असुरक्षा का नतीजा है. This is all the result of insecurity. ये सब असुरक्षा का नतीजा है. But how is it with Jesus when people call him the Prince of Devils? He just left them alone. They accused him. They said all types of stories about him. He just left them alone. It did not bother him one bit. लेकिन प्रभु यीशु के साथ यह कैसा था? जब लोग उसे शैतानों का राजकुमार कहते थे, उसने बस उन्हें अकेला छोड़ दिया. जब उन लोगों ने उस पर आरोप लगाए, उनके बारे में सभी प्रकार की कहानियां कही, उन्होंने बस उन्हें अकेला छोड़ दिया. इससे उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई. So the most important thing for us is to know God as a father. इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर को एक पिता के रूप में जानना है. He's not a policeman. He loves you. He cares for you. He knows every detail of your life. वह कोई पुलिसकर्मी नहीं है. वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी परवाह करता है, वह आपके जीवन का हर विवरण जानता है. And if you have opened your heart to let Jesus Christ come into your heart, God has become your father. That choice is yours. यदि आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में आने देने के लिए अपना हृदय खोल दिया है तो परमेश्वर आपका पिता बन गया है. वह चुनाव आपका है. Now if you're not sure of that, you can do that right now. Just open your heart and say, Lord Jesus, I want you to come into my heart. I want to be sure that I'm a child of God. यदि आप इसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं. बस अपना हृदय खोले और कहे, प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में आए. मैं आश्वस्त होना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं. Ask him to give you that assurance. He will send his Holy Spirit into your heart to assure you God is your father. उनसे आपको यह आश्वासन देने के लिए कहें और वह आपको आश्वस्त करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा आपके हृदय में भेजेंगे कि परमेश्वर आपका पिता है. If you're a Christian already, ask God to give you that assurance. He's your father who will care for you. It will make all the difference in your life. यदि आप पहले से ही मसीही हैं तो परमेश्वर से यह आश्वासन देने के लिए कहें कि वह आपका पिता है जो आपकी परवाह करता है. इससे आपके जीवन में बहुत फर्क आ जाएगा.